અને હવે વાત કરવી છે કોલ્હાપુરની। औरंगजेबના વખાણ કરતી સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટને લઈને મહારાષ્ટ્રના કોલ્હાપુરમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ થઈ, જેમાં બંને તરફથી ઉગ્ર લાઠીચાર્જ અને પથ્થરમારો થયો। પોલીસે પણ સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે લાઠીચાર્જ કરવો પડ્યો હતો। આ સમગ્ર ઘટના શું હતી જોઈએ અહેવાલમાં। મહારાષ્ટ્રના કોલ્હાપુરમાં હિન્દુવાદી સંગઠનો દ્વારા આયોજિત વિરોધ માર્ચમાં હોબાળો થયો। આ માર્ચ કેટલાક મુસ્લિમ યુવકો તરફથી સોશિયલ મીડિયા પર ઔરંગઝેબ સંબંધિત સ્ટેટસ મૂકવાના વિરોધમાં યોજવામાં આવી હતી। અમુક દેખાવકારોની પોલીસે ધરપકડ કરી લીધી છે। બે સમુદાય વચ્ચે તણાવની સ્થિતિને જોતા તંત્ર દ્વારા કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી હતી। હિન્દુવાદી સંગઠનોએ બંધનું એલાન કર્યું હતું। હિન્દુવાદી સંગઠનોએ હિન્દુઓને છત્રપતિ શિવાજી ચોકમાં ભેગા થવા આહવાન કર્યું હતું। સવારે 9 વાગ્યાથી જ વિરોધ માર્ચમાં સામેલ થવા માટે લોકોની ભીડ એકઠી થવા લાગી હતી। ધીમે ધીમે ભીડ વધતી ગઈ અને તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ થવા લાગી। તેના બાદ સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો હતો। મહારાષ્ટ્રના ગૃહ વિભાગે પોલીસને આદેશ આપ્યો કે જલ્દીથી જલ્દી સ્થિતિને કાબૂમાં લેવામાં આવે। संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। सर, यहाँ पे मुंबई में एक 18 साल की युवती के साथ हॉस्टल में सर जिस तरह से मर्डर करके रेप किया गया, किस तरह से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो घटना हुई है वो दुर्दैवी घटना है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है और संबंधित जो जिसके ऊपर शक है उसने भी सुसाइड किया है। पुलिस उसकी जांच कर रही है और इसके ऊपर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले। કોલ્હાપુરના દેખાવો પહેલા છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં અમુક યુવકોએ જુલુસ દરમિયાન ઔરંગઝેબના પોસ્ટર લહેરાવ્યા હતા। તે પછી કોલ્હાપુરમાં અમુક યુવકોએ સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટેટસ મૂક્યા, તેમાં ઔરંગઝેબની તસવીરો પણ હતી। હિન્દુવાદી સંગઠનોએ આ મામલે પોલીસમાં ફરિયાદ કરી અને આવા લોકોની ધરપકડની માંગ કરી દીધી, જેના પછી કોલ્હાપુર બંધનું આહવાન પણ કરાયું। કોલ્હાપુર બંધ હોવાને કારણે દુકાનો બંધ હતી, પણ હિન્દુવાદી સંગઠનોના દેખાવકારોએ બંધ દુકાનો પર પથ્થરમારો શરૂ કરી હતી। સ્થિતિને કાબૂમાં લેવા પોલીસ તરફથી લાઠીચાર્જ કરવામાં આવ્યો અને અમુક દેખાવકારોની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી। કોલ્હાપુર પોલીસના સત્તાવાર નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે કર્ફ્યુ પહેલેથી જ લાદવામાં આવ્યું હતું અને વાંધાજનક પોસ્ટ કરનારા બે લોકો સામે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે, ત્યારે પણ વિરોધ કૂચ શા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે? કાયદો અને વ્યવસ્થા પોતાના હાથમાં લેવાનો કોઈને અધિકાર નથી, જેના કારણે પોલીસે તમામ લોકોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી છે। આ મુદ્દે શરદ પવારે શિંદે ફડણવીસ સરકારને ભીસમાં મૂકતા કહ્યું કે સરકારનું કામ ધાર્મિક સૌહાર્દ જાળવવાનું છે, પરંતુ ભાજપ બે સમુદાયો વચ્ચે તણાવ પેદા કરનારાઓને ભડકાવી રહી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત ફર્સ્ટ। देवनाथ पांडे વધુ जानकारी साथ जोड़ाया है। देवनाथ, कोल्हापुर में जो जानकारी सामने आ रही है कि वहां पे प्रदर्शन भी हुआ था, विरोध भी हुआ था, हाल की परिस्थिति वहां की क्या है? देखिए दिव्या, बिल्कुल साफ तौर से महाराष्ट्र के 2 जिले हैं, कोल्हापुर है, एक अहमदनगर है, और इन दोनों ही जिलों में फिलहाल जो तनाव का माहौल जो देखने को मिल रहा था, वहां अब शांति व्यवस्था बहाल कर ली गई है और जो अभी भी असामाजिक तत्व के लोग हैं उन्हें भी शांत करने की कोशिश की जा रही है। 21 लोग इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए हैं।
लेकिन जब इस घटना की शुरुआत हुई तो कहा जा रहा है कि सबसे पहले सोशल मीडिया पर औरंगजेब की तस्वीरें वायरल की गई और उसके बाद जब देखने को मिला, जब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था एक समाज की तरफ से, तो वहां पर भी पत्थरबाजी देखने को मिली, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां पर बलपूर्वक जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया और तब देखने को मिला कि स्थिति वहां से बेकाबू हो गई। हालांकि उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी सामने आए, उप मुख्यमंत्री भी सामने आए और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से औरंगजेब को लेकर तमाम तरह की सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं वो बिल्कुल निंदनीय है और ऐसा करने वाले बिल्कुल माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ तौर से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया है, किसी भी तरह के जो है भ्रामक दावे ना करें, सोशल मीडिया पर भी इस तरह से कोई ऐसी बातें ना कहें कि महाराष्ट्र के अंदर जो शांति व्यवस्था है वो भंग हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि दो जिलों में अचानक इस तरह से तनाव का माहौल क्यों हो गया और अचानक औरंगजेब का चर्चा यहाँ पर क्यों देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर से ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से, यानी कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे नहीं होके उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, तब भी कुछ इस तरह की स्थिति देखने को मिली थी। और अब ये कहा जा रहा है, खास तौर से सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके पीछे किन ताकतों का हाथ है। अब इशारा अगर समझने की कोशिश की जाए तो सरकार हमेशा विपक्ष पर ही हमला करता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन जो भी हो, अब एक जुलूस अगर निकाला जा रहा है, विरोध प्रदर्शन अगर निकाला जा रहा है, उसमें औरंगजेब की तस्वीरों को लेकर औरंगजेब के नाम का महिमा मंडन अगर किया जाता है तो साफ तौर से इस तरह से माहौल वहां पर खराब होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि ताजा स्थिति अब यही कही जा रही है कि हालात को काबू कर लिया गया है, चाहे वो कोल्हापुर हो या फिर अहमदनगर हो। तो इन दोनों जगहों से कुल 21 लोग हिरासत में लिए गए हैं। इन लोगों से पूछताछ की जाएगी और खास तौर से महाराष्ट्र की सरकार, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, अब इस पूरे मुद्दे पर पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं, क्योंकि शांति व्यवस्था जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, मणिपुर के अंदर भी देखने को मिला है, तो इन सब जगहों पर और ज्यादा तनाव की स्थिति ना हो, उससे पहले ही सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि हालात को काबू कर लिया जाए। जी और देवनाथ, जैसे अभी ये जानकारी मिल रही है कि वहां पे 144 भी शायद लगाई दी गई है, साथ में पुलिस भी वहां पे क्या स्टैंड बाय पे रखी गई है क्योंकि फिर से कोई ऐसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन ना हो? देखिए दिव्या, जिस तरह से वहां पर पहले माहौल देखने को मिला, चाहे मंगलवार की बात हो या फिर आज भी देखने को मिला, तो जब भीड़ बहुत ज्यादा बेकाबू हो चुकी थी तो पुलिस को वहां पर कंट्रोल करने के लिए हालात को लगाया गया था। फिलहाल जब ऐसे तनाव भरे माहौल जब हो जाते हैं तो वहां पे 144 लगाना पड़ता है। और जिस तरह से अब राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों साफ तौर से अब सफाई देते हुए, बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों जगहों पर पुलिस प्रशासन अभी भी मौजूद है और भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है, क्योंकि जिस तरह से अब पहले देखने को मिलता था कि खास तौर से जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती थी, जब पाकिस्तान का झंडा लेकर लोग चलते थे, वहां पर दिखाया जाता था, तो इस तरह की घटनाएं वहां पर देखने को मिलती थी। लेकिन अब महाराष्ट्र के अंदर अगर इस तरह के असामाजिक तत्व आ जाते हैं तो अब कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा होता है और एक सोचने वाली बात भी होती है कि अगर हालात काबू नहीं किए जाते हैं तो शायद बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती थी, क्योंकि खास तौर से देखा जाता है दो धर्म के लोग जब कुछ इस तरह से टकराते हैं तो उसका नतीजा बिल्कुल उसका उल्टा होता है। तो यही महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश में लगी हुई है। हालात को पूरी तरह से काबू तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब के जो समर्थक हैं अचानक, चाहे वो भीड़ में घुसकर पोस्टर लेकर उन्हें उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसका बखान कर रहे हैं, तो उन सबको खोज कर उन्हें चिन्हित करके उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा बहुत जल्दी, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र का माहौल किसी भी तरह से सरकार खराब नहीं होने देना चाहती। जी देवनाथ, जानकारी के लिए धन्यवाद।